concepts should be fresh in the mind. And today, after completing this session, I'll be sharing the entire slide with you, and I'll also give you some additional material. Okay. So next week when I'm taking the sessions, थोड़ा सा practice भी हो जाएगा उसके बीच में. You can go for some self practice, and you'll be feeling more comfortable with permutation combination related problems. Good afternoon, Amit, and लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं, तो I'll make a soft start. थोड़ा सा recap कर लेते हैं. This is what we did in the previous session. So just checking once again. Example 1, first beat, what will be the answer? Yes, Subhasmita. And permutation combination आप देखो और कुछ नहीं है. They are smart tools for counting. And yes, so and when it comes to counting, permutation combination का foundation है the fundamental principles of counting. There are two fundamental principles of counting. They are the product rule and the sum rule, which are basically what? And will go with multiplication operation, it is represented by this sign, or will go with plus operation represented by this sign. Okay. So इसी में सब कुछ है. So this answer would be 16, this would be 8. And इसके बाद और एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे. What is the answer to this question? That's definitely correct. Suraj, Arun, Subhasmita, Subrat, Monalisha, Sakshi, Manoranjan, सबने correct answer दिया. When a coin is tossed 3 times, it is tossed the first time and the second time and the third time. ठीक है? So once we toss a coin, there are 2 outcomes. 3 times 2 into 2 into 2, there will be 8 outcomes. 2 dice are thrown. How many outcomes? Very nice. 36 outcomes. Subrat, 2 coins नहीं था, 2 dice था. Yes, all of you have given correct answers. And what would be the answer to this one? Prajwal, Suraj, स्पर्धा 6 to the power 4 नहीं होगा, 4 to the power 6 होगा. अरमान PC कुछ नहीं लगेगा यहाँ पे. हमें 6 लेटर पोस्ट करने हैं. ठीक है? So we need to post the first letter. We need to post the first letter and the second letter and the third letter and the fourth letter and the fifth letter and the sixth letter. ठीक है? फर्स्ट लेटर पोस्ट करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं. सेकंड के लिए भी 4 ऑप्शंस हैं. एक पोस्ट बॉक्स में कितने भी लेटर्स जा सकते हैं? And is into. So the answer is 4 to the power 6. Yes, Ayushi, that is the correct answer. Okay, let us move on. And how many 2-digit numbers are there?
90 and both the digits are odd. ये था 25. Yes, yes, yes. 5 into 5, both the digits are even. 20. Yes, Prajwal, you've answered all the 3 questions correctly. Yes, Subhasmita, 1 digit odd, 1 digit even, 45. देखो एंड और कितना क्लियरली आता है. 1 digit odd, 1 is even. या 2 digit भरने हैं, ये प्लेस भी भरना है एंड ये प्लेस भी भरना है. एक ऑड एक इवन, तो ये ऑड ये इवन हो सकता है और ये इवन एंड ये ऑड हो सकता है. ठीक है. और इज प्लस, यहाँ पे ऑड 5 केसेस, यहाँ पे इवन 5 केसेस, यहाँ पे 0 नहीं लगा सकते. ऑड डिजिट्स 5 है, 1 3 5 7 9. इवन डिजिट्स भी 5 है, 0 2 4 6 8. यहाँ पे 0 नहीं रख सकते. दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज. ठीक है. ओके, सो ये था यहाँ पे. लेट मी सी हाउ मेनी पीपल हैव जॉइंड. धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 50 मोर पीपल टू ज्वाइन. ये सब किए थे. सो आई होप यू रिमेंबर, एंड रिमेंबर इज नॉट आई मीन समथिंग व्हिच इज सिग्निफिकेंट. लॉजिक इज व्हाट मैटर्स. वो लॉजिक दिख गया नहीं, बिल्कुल फाउंडेशन वाले क्वेश्चंस है. ये सब क्लियर है तो आगे वो भी आसान रहेगा. यहाँ पे दिक्कत है तो आगे वाले प्रॉब्लम्स फिर समझ नहीं आएंगे. एंड ट्रस्ट में परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा एरिया है कैंपस में, आई मीन यू गेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. नॉर्मली जैसे मैंने एमकैट में देखा है, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बेस लेवल रहता है, नॉर्मल लेवल रहता है. ठीक है. बट एट टाइम्स आई हैव सीन एक टाइम पे इन्फोसिस, आई मीन यूज्ड टू गिव टफ क्वेश्चंस. टीसीएस भी एक टाइम पे स्टार्टेड गिविंग slight questions on permutation combination probability which were on the more difficult side. बट कोई बात नहीं है, पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद थोड़े मोर एडवांस लेवल में जाना है और एडवांस लेवल में जाना है और सब लेवल में कंफर्टेबल रहेंगे अगर ठीक से प्रैक्टिस किया है. ये आयुषी एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट था 5 to the power 5, सेकेंड वाला था 5 फैक्टोरियल. ठीक है. ये सब भी किए थे. एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज परमुटेशन. फिर ये क्वेश्चन पे आए थे. ओके. एंड वी डिस्कस सम बेसिक थिंग्स. n things can be arranged in how many different ways. yes, अनुभव मैंने वो बताया था, बट somehow मैम जो क्लास लेने वाली थी, she had some issues. So just around 3 o'clock today she called me and told me she won't be able to take the session. तो मैंने कहा ठीक है मैं ही ले लेता हूँ. और ऐसे भी ट्यूसडे को किए थे, ट्यूसडे सैटरडे में थोड़ा गैप हो जाता. मैंने कहा चलो वो भी ठीक है, क्योंकि आपके ऑल्टरनेट वाले ग्रुप में मैंने दोनों सेशंस जो है ना वो मंडे और वेंसडे को ले लिया था, तो उनका 2 क्लास परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंप्लीट हो चुका था. आपका चलो सैटरडे को करता, आज कर दिया. आई होप देयर इज नो बिग इश्यू ऑन बिकॉज ऑफ दैट. एनीवेज परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी खत्म नहीं होगा. दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक मेरा टारगेट रहेगा, ऑफ कोर्स जो लोग क्लास अटेंड करेंगे, जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे उनके लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग सेशंस अटेंड कर रहे हैं, ये वीक में 2 क्लासेस, नेक्स्ट वीक में 2 क्लासेस, आई विल मेक श्योर यू आर ऑल वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड ड्यूअल. ये मेरा टारगेट है कमिंग एंड नेक्स्ट वीक का. Okay. So first question था how many different ways 5 boys and 8 girls all can be seated in a row. और यहाँ पे मैंने आपको पूछा था कि n things can be arranged in how many different ways. Yes, Shweta Padma, that is the correct answer. n things सबको arrange करना है. Yes, वैशाली,
Yes, Ankita, n things all are going to be arranged. They can be arranged in n factorial different ways. Okay. Yes, Sakshi. तो यहाँ पे 13 लोग हैं, बॉयज गर्ल्स का कोई अलग से कंडीशन तो नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13 फैक्टोरियल। ऑल बॉयज टुगेदर, इसका क्या आंसर होगा? आयुषी करेक्ट आंसर, और कुछ लोगों ने शायद करेक्ट आंसर दिया था। साक्षी, दैट इज द करेक्ट आंसर। श्वेतपद्मा, सुभस्मिता, अंकिता, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड प्लीज ट्राई टू सी यहाँ पे कैसे सोचना है। वैशाली, दैट इज द करेक्ट आंसर। सुप्रीति, करेक्ट आंसर। प्रज्वल, थोड़ा गलत हो गया, और एक स्टेप सोचना था, आधा सही सोचा आपने, और थोड़ा सा सोचना था। कैसे सोचना है? ऑल द बॉयज विल बी टुगेदर, ठीक है। तो हमारे पास 5 बॉयज हैं, 5 बॉयज 8 गर्ल्स, जब सबको अलग अलग देख रहे हैं तो 13 लोगों को अरेंज कर रहे थे। अब लेकिन ये 5 बॉयज जो है एक साथ में रहेंगे, तो ये 5 बॉयज कहीं भी रहेंगे, एक साथ में रहेंगे, इनको एक चीज पकड़ लेते हैं, और साथ में 8 गर्ल्स है। सो नाउ हाउ मेनी थिंग्स आर गोइंग टू बी अरेंज्ड? 5 बॉयज का ग्रुप एक चीज, एंड 8 गर्ल्स, 1 + 8, 9 things are going to be arranged now. 9 things can be arranged in how many ways? 9 things can be arranged in 9 factorial different ways. Alright. And what else? 5 boys को तो एक साथ में एक ग्रुप पकड़ लिया, कहीं भी रहेंगे, उनके अंदर आपस में अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उतने केसेस बन जाएंगे, हर एक केस जितने ऑलरेडी है उसके साथ। सो 5 बॉयज में कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। सो दैट इज वाई आंसर वुड बी 9 फैक्टोरियल into 5 factorial. Okay, and of course next question same ही concept पे था, all the girls are together था। इसका क्या आंसर होगा? Yes, Shweta Padma, that is the correct answer. Ayushi, that is the correct answer. अविनाश, बहुत सारे लोगों ने, उत्कर्ष, सुप्रीति, स्पर्धा, सुभस्मिता, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। सुब्रत, सोहन, मनोरंजन, बिल्कुल सही। अब सारे गर्ल्स एक साथ में रहेंगे, if all the girls are together, एट गर्ल्स को एक साथ में एक चीज मान लेते हैं, कहीं भी रहेंगे, एक साथ में रहेंगे, तो हाउ मेनी थिंग्स विल बी अरेंज्ड नाउ? प्रत्येक 9 into 8 फिर कैसे होगा? सारे गर्ल्स एक साथ में रहेंगे, तो गर्ल्स को एक ही चीज पकड़ लेते हैं, एक ग्रुप कहीं भी रहेंगे, and 5 boys. So we are going to arrange how many things now? 5 boys and girls का group. 6 things are going to be arranged. 6 things can be arranged in 6 factorial different ways. And what else? Girls को तो एक चीज पकड़ लिया, एक साथ में रहेंगे, that is fine, but वो 8 गर्ल्स हैं, उनके अंदर आपस में कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? उनके अंदर आपस में 8 factorial arrangements हो सकते हैं। So answer would be 6 factorial into 8 factorial. All right. So if you are clear, I'm just checking once again. Suppose I'm giving you 10 boys and 20 girls. In how many different ways they can be arranged so that all girls are together? What will be the answer? Yes. वेरी गुड गीतिका, सुब्रत, श्वेता, और भी बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। विश्व प्रकाश, तो सारे गर्ल्स एक साथ में रहेंगे, तो गर्ल्स का एक ग्रुप और 10 बॉयज, 11 थिंग्स विल बी अरेंज्ड। 11 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन 11 फैक्टोरियल वेज, एंड 20 गर्ल्स विद इन themselves कैन बी अरेंज्ड इन 20 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज। एंड ऑल बॉयज टुगेदर, कितने केसेस होंगे? बॉयज का ग्रुप और 20 गर्ल्स हैं, बिल्कुल सही। दैट आंसर विल बी 21 फैक्टोरियल into 10 फैक्टोरियल।
कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया, जिन्होंने गलत आंसर दिया प्लीज रेक्टिफाई योरसेल्फ, कहाँ पे मिस्टेक हुआ। 11 फैक्टोरियल यहाँ पे कहाँ से होगा, ऑल बॉयज टुगेदर, बॉयज सारे एक चीज, और 20 गर्ल्स, 21 थिंग्स विल बी अरेंज्ड, 21 फैक्टोरियल वेज, 10 बॉयज एक साथ में तो रहेंगे, उनके अंदर आपस में देयर कैन बी 10 फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ओके, ऑलराइट देन, लेट अस मूव ऑन। इतना तो लास्ट सेशन में कर ही लिए थे। Let us go for some new kinds of situations and questions now. What will be the answer to this question? No two boys are together. No Suraj. No Ankita. No Shweta Padma. No SPS. अलौकिक, अरमान, किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं आया अभी तक। नो सुवस्मिता। अब देखो कॉम्प्लीमेंटरी केसेस जो होते हैं ना, नो सुब्रत, नो सोनाली। कुछ लोग सोचते हैं I got one correct answer from Utkarsh and Arman. Arman, no. I think I got two correct answers और एक नाम नहीं पढ़ पाया मैं। Shweta Raut, that is the correct answer. Okay. But then I haven't told you what is combination. अभी तो permutation में। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ऑल बॉयज आर टुगेदर, तो टोटल केसेस में से ऑल बॉयज टुगेदर को निकाल देंगे तो नो टू बॉयज आर टुगेदर। बिल्कुल नहीं, ऑल बॉयज टुगेदर का कॉम्प्लीमेंटरी केस बिल्कुल नहीं है कि नो टू बॉयज आर टुगेदर। अंकित थोड़ा सा गलत हुआ, 7 नहीं होगा, 9 होगा, क्यों बता रहा हूं। तो नो टू बॉयज आर टुगेदर मतलब कोई भी दो बॉयज एक साथ में नहीं है। ऑल बॉयज आर टुगेदर मतलब सारे पांचों के 5 बॉयज एक साथ में। और भी तो सिचुएशंस हो सकते हैं ना, हो सकता है 2 बॉयज एक जगह में एक साथ में और 3 बॉयज अलग अलग हैं, तो वो भी तो नो टू बॉयज आर टुगेदर में काउंट नहीं होगा ना, वो ऑल बॉयज टुगेदर में भी काउंट नहीं होगा। आयुषी थोड़ा सा गलत हुआ फिर से। अंकित, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कैसे सोचना है यहाँ पे, नो टू बॉयज आर टुगेदर मतलब कोई भी 2 बॉयज के बीच में क्या रहने वाला है, कोई भी 2 बॉयज के बीच में क्या रहने वाला है। कैन यू से 1 गर्ल, at least 1 girl is the correct answer. कोई भी 2 boys के बीच में there will be at least 1 girl. There could be 2 girls also. There could be 3 girls also. Yes अरमान, अभी सही आंसर आया। बेसिकली देखो यहाँ पे कैसे सोचना है, देखो लाइन में पूरे 5 बॉयज और 8 गर्ल्स, 13 लोग सब बैठने वाले, कोई भी 2 बॉयज एक साथ में नहीं होंगे। अब देखो कैसे भी लाइन में 8 गर्ल्स तो बैठेंगी, ऑल 8 गर्ल्स वुड बी सीटेड।
8 गर्ल्स हैं। अब 8 गर्ल्स हैं बैठे हुए हैं, अब बॉयज कहां पे रहेंगे? अब देखो बॉयज तो एक साथ में नहीं रह, कोई भी 2 बॉयज एक साथ में नहीं रह सकते। तो बेसिकली यू सी यहाँ पर 8 गर्ल्स बैठे हैं, तो कितने गैप्स क्रिएट हो रहे हैं? गैप्स क्रिएट हो रहे हैं 9। उनके बीच में 7, एक इस एंड में और एक दूसरे एंड में, ये 9 गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। 8 गर्ल्स में 9 गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। अब बॉयज कहां जा सकते हैं? बॉयज कैन ऑक्यूपाई एनी 5 ऑफ दिस 9 गैप्स। ठीक है, सपोज ऐसे रख दिया 5 बॉयज को, ठीक है, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, सब लोग बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि वही 5 पोजीशन में बिठाएंगे, somebody will say ये 5 पोजीशंस में बिठाएंगे। ऑलराइट, तो नो 2 बॉयज आर टुगेदर। ठीक है, तो बेसिकली 5 बॉयज कहां पे बैठेंगे? ये जो 9 गैप्स हैं उसमें से 5 gaps can be selected by 5 of the boys in how many ways? नाइन गैप्स में 5 बॉयज जाएंगे, कितने वे में? श्वेतपद्मा सी क्यों होगा? लोग बैठेंगे तो अरेंजमेंट हो रहा है, दैट इज 9p5। 9 गैप्स में से 5 गैप्स कैन बी फिल्ड बाय 5 बॉयज इन 9p5 ways। एंड व्हाट एल्स? यस आयुषी, you have written 8p8 which is correct, but more simply 8 गर्ल्स तो बैठे हैं, 8 गर्ल्स में अपने अंदर कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? 8 फैक्टरियल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। सो आंसर would be 9p5 into Shwetapadma. Okay, Vaishali, I am explaining again. Shwetapadma, there is a relationship between permutation and combination. वो क्या है मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। ठीक है, तो किसी ने बताया था 9c5 into 5 फैक्टोरियल into 8 फैक्टोरियल, तो वो भी करेक्ट होगा। ओके, सो पहले तो आप देखो सारे केसेस में आप ऑल बॉयज टुगेदर हटाओगे तो ये केस नहीं आएगा। ऑल बॉयज टुगेदर मतलब 5 के 5 एक साथ में है, कहीं पे 3 जन एक साथ में और कहीं पे 2 जन एक साथ में है, वो सिचुएशन भी ऑल बॉयज टुगेदर में नहीं आता है। लेकिन वो यहां पर भी नहीं आएगा, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, कोई भी 2 बॉयज साथ में नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस विल बी डिफरेंट। बेसिकली लाइन में 8 गर्ल्स हैं, 8 गर्ल्स जो बैठे हैं वहां पे 9 गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। अब बॉयज कहां पे जा सकते हैं? बिकॉज नो 2 बॉयज आर टुगेदर मीन्स बिटवीन एनी 2 बॉयज देयर विल बी एटलीस्ट 1 गर्ल। तो ये जो 9 गैप्स है ना, उसमें से कोई भी 5 गैप फिलअप होंगे बाय बॉयज। तो आउट ऑफ these 9 gaps 5 gaps will be filled by 5 boys in 9p5 ways, और बाकी 8 गर्ल्स तो है, उनके अंदर आपस में और 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। सो द आंसर इज 9p5 into 8 फैक्टोरियल। ओके, all right, then let's look at the next question. No 2 girls are together. That's absolutely right, Sohan. That's absolutely correct, Adarsh.
That's absolutely correct, Aryan. No, Ayushi. No, Vishwa Prakash. Yes, correct answer. Yes, Ankita. That is correct. बट ये क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? स्पर्धा, दैट इज करेक्ट. यस अंकिता, दैट इज द करेक्ट आंसर. नो अंकित, ऐसे नहीं होगा. अनुभव, दैट इज करेक्ट. अब देखो, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर. अब 5 बॉयज है. इफ नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, आप बॉयज का सोचो पहले. सिद्धांत, आप क्या कर रहे हो? ओके, तो 5 बॉयज है. बॉयज कैसे भी वो बैठेंगे. 5 बॉयज में कितने गैप्स क्रिएट हो रहे हैं? 5 बॉयज में देखो 6 गैप्स क्रिएट होंगे. 4 और एंड में 2, 6 गैप्स. अब देखो, अगर 6 गर्ल्स होते हैं ना, तो हम उनको ये गैप्स में बिठा दें. ये गैप्स में हम 6 गर्ल्स को बिठा देते हैं, ठीक है. और नो टू गर्ल्स वुड बी टुगेदर. अब 7th गर्ल आप कहीं भी बिठाओ, 2 गर्ल एक साथ में आ ही जाएंगे कि नहीं? नो रमाकांत. तो ये अरेंजमेंट आप कर ही नहीं सकते. 5 बॉयज में आप मैक्सिमम 6 गर्ल्स को अकोमोडेट कर सकते हो, नो टू गर्ल्स टुगेदर. उससे ज्यादा गर्ल्स हैं 7, 8, 9, 10 नहीं कर सकते, ठीक है. कुछ फॉर्मूला वाले होते हैं जो इसका आंसर मुझे दिए थे 6p8 इंटू समथिंग. 6p8 इज एन इम्पॉसिबिलिटी. NPR का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ R डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ N डिफरेंट थिंग्स. आपके पास 12 लोग हैं, 10 चेयर है, ठीक है. आप मैक्सिमम 10 लोगों को बिठा सकते हो, 12 लोगों को थोड़ी बिठा सकते हो, 12 लोगों को नहीं बिठा सकते ना. सो NPR इज अरेंजमेंट ऑफ R थिंग्स आउट ऑफ N डिफरेंट. आपके पास अवेलेबल है N थिंग्स, उसमें से आप मैक्सिमम N अरेंज कर सकते हो. उससे ऊपर कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ऑलवेज N विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू R. So this situation is not possible. Not possible means it is possible in how many ways? It is possible in 0 number of ways. Got it now? ये हो ही नहीं सकता. आप सोचो, 2 बॉयज हैं, 3 गैप्स क्रिएट हो रहे हैं. 3 गर्ल्स को बिठा सकते हैं, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर. अगर 2 बॉयज 4 गर्ल्स में नो टू गर्ल्स टुगेदर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. Okay. I hope you got it, and let us move on now for some other kinds of situations. Let us answer this question. How many different words can be formed by using the letters of the word international? Now let me clarify the question. Questions ऐसे phrased होते थे पहले. Somebody should and can phrase the question with more clarity. First thing, how many words can be formed? Words से ये मतलब नहीं कि meaningful word बना, ठीक है. तो ऐसे नहीं कि इसमें से word बनाएंगे ANT ant, ऐसा नहीं, ठीक है. इंटरनेशनल में कितने लेटर्स हैं? 13 लेटर्स हैं, ठीक है. तो कोई भी नया वर्ड बनाएंगे ना, मीनिंगफुल होगा जरूरी नहीं है, उसमें 13 लेटर्स ही रहेंगे. और कौन से 13 लेटर्स रहेंगे? यही 13 लेटर्स रहेंगे. ऑलराइट, यही 13 लेटर्स रहेंगे जो भी नया वर्ड बनाएंगे. तो क्वेश्चन कैन बी रीफ्रेज्ड एज
इंटरनेशनल वर्ड के जितने लेटर्स हैं वो आपस में कितने वे में रीअरेंज हो सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल बिटवीन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरनेशनल, ओके। यस आयुष, दैट इज द करेक्ट आंसर। श्वेता पद्मा, पुष्पेंद्र थोड़ा सा गलत हो गया, सोनाली वो भी सही नहीं है, नो देवाशीष, नो अदर्स। स्पर्धा थोड़ा सा गलत हो गया, आर्यन दैट इज द करेक्ट आंसर। भक्त गोपाल आपने कुछ ज्यादा ही टाइम्स 2 फैक्टोरियल लिख दिया। अरुण एक 2 फैक्टोरियल छोड़ दिया आपने। सोहन करेक्ट आंसर। वैशाली एक 2 फैक्टोरियल आपने छोड़ दिया। अरमान इतने सारे 2 फैक्टोरियल्स नहीं होंगे। 1 फैक्टोरियल लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 1 फैक्टोरियल इज हाउ मच? 1 फैक्टोरियल इज 1। 1 मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से सेम रिजल्ट होता है। सिबन बस ये तो आंसर नहीं होगा, ये डिनोमिनेटर होगा। ओके आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं विथ बेसिक एग्जाम्पल। सपोज आई आस्क यू ए बी सी, ये तीनों में कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? 3 चीजें हैं, 3 फैक्टोरियल, 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। व्हाट वुड बी द 6 अरेंजमेंट्स? ए बी सी लिख के दिखा देता हूं। These are the 6 arrangements possible between 3 different things. अभी मान लो 2 सेम कर दिया मैं। सपोज आई आस्क यू ए बी, कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? स्वराज 4 कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। विश्व प्रकाश, प्रज्वल, ओम प्रकाश करेक्ट आंसर दिए, और सूरज आयुषी करेक्ट आंसर है। वैशाली दैट इज द करेक्ट आंसर। आप देखो बेसिकली क्या है ना, 3 लेटर्स है जिसमें 2 ए है, 1 बी है। तो बी को कोई भी एक पोजीशन में रख लो तीनों में से, बाकी 2 पोजीशंस तो ए ही ऑक्यूपाई करेंगे, राइट? सो द अरेंजमेंट्स वुड बी दीज ओनली, ए बी, ए। और कुछ कर सकते हो आप? ए बी ये तीनों में और कोई अरेंजमेंट आप सोच सकते हो? और कुछ हो ही नहीं सकता। नाउ इसको सोचना कैसे आराम से? 3 चीजें हैं, अगर तीनों अलग अलग होते जैसे एबीसी तो 3 फैक्टोरियल 6 अरेंजमेंट्स होते, तीनों अलग अलग नहीं है। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो ये दोनों चीजों में कितने अरेंजमेंट्स होते? 2 फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट्स होते, ऑलराइट। तो अगर 3 फैक्टोरियल सोच रहे हैं ना, ये केस में क्या है, उसमें 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? 2 फैक्टोरियल डिवाइड करने से एडजस्ट हो जाएगा। एंड आई एम टेलिंग एग्जैक्टली व्हाट आई मीन टू से। अगर A1 A2 होते ना, फिर दीज अरेंजमेंट शुड बी A1 A2 भी एक अलग होता, A2 A1 भी एक अलग होता, A1 B A2 अलग होता, A2 B A1 अलग होता एक अरेंजमेंट, B A1 A2 अलग होता, B A2 A1 अलग होता,
ऑलराइट, तो ये जो एक एक केस बने हैं ना, अगर ये अलग अलग चीज होते तो दो दो केस होते, क्योंकि इनके आपस में दो दो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, A1 A2 A2 A1, ठीक है, तो 6 का हाफ 3 हो जाएगा, ठीक है। सो हाउ टू थिंक इजीली, अगर तीनों अलग अलग चीज होते, 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होते, लेकिन ये दो सेम है तो 3 फैक्टोरियल हमने क्या सोच के लिख दिया, अलग अलग चीजें, अलग अलग नहीं है। A1 A2 अलग अलग है, ये सोच के 3 फैक्टोरियल लिख दिया, वैसा नहीं है। तो ये दो चीजों में कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, तो इसमें 2 फैक्टोरियल डिवाइड करने से सही हो जाएगा, सो 6/2 3 आ जाएगा। गॉट इट। तो जो रिपीटेशंस होंगे उनको डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि उतने उतने अरेंजमेंट्स को हमने अलग अलग मान लिया था, उतने उतने केसेस नहीं होंगे, वो सबका एक ही केस होगा। सो द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल में देखो कितने लेटर्स हैं, 13 लेटर्स हैं। अब 13 अलग अलग लेटर्स होते हैं तो कितने अरेंजमेंट्स होते हैं उनमें, 13 फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं। 13 फैक्टोरियल क्या सोच के लिख दिया कि सब अलग अलग लेटर्स हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आई कितने हैं, 2 आई है, तुमने 13 फैक्टोरियल लिख दिया, इसको I1 इसको I2 मान के हम 13 फैक्टोरियल लिख दिया, वो दो केस नहीं होंगे, एक ही केस होगा। सो एडजस्ट कैसे होगा, इसमें 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। सिमिलरली n कितने हैं, 1 2 3, तीनों अलग अलग चीज होते हैं, तीनों में 3 फैक्टोरियल 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल होते हैं। अब वो 6 केसेस नहीं होंगे ना, एक ही केस होगा। सो कैसे एडजस्ट होगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइड करने से वो एडजस्ट होगा। एंड देन t 2 है तो उसके लिए और एक 2 फैक्टोरियल डिवाइड होगा, और कौन सा, a भी 2 है उसके लिए और एक 2 फैक्टोरियल डिवाइड होगा। So this would be the answer. Okay, got it now? ये इजी है, ये याद होगा मेरे ख्याल से। ऑलराइट, तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट इसको मिला के और एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो इसमें ऑप्शन दे रहा हूं। अरे दूसरे ऑप्शन भी तो देख लो। ऑप्शन ए मार दिए। क्या आंसर होगा, साक्षी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नो श्वेता। शुभ्रांशु करेक्ट आंसर, प्रज्वल करेक्ट आंसर, आयुषी करेक्ट आंसर, सोहन करेक्ट आंसर। लिख देने से इजी हो जाता है ना। ये आदर्श, पुष्पेंद्र, दैट इज करेक्ट आंसर। अंकिता, दैट इज द करेक्ट आंसर। Yes, Arman, that is the correct answer. Devashish, Subhasmita, Aryan,
करेक्ट आंसर है। आप देखो, अगर कंडीशन कुछ नहीं देता ना, ये स्पर्धा, स्वराज, उत्कर्ष, मोनालिसा, वो सही आंसर है कि कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ये कंडीशंस नहीं होता तो आंसर क्या होता? कितने लेटर्स है? 11 लेटर्स है, 11 फैक्टोरियल। रिपीटेशंस कौन कौन से? एम 2 है, ए 2 है, फिर टी 2 है, इतने ही रिपीटेशंस है। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइड होता है। लेकिन कंडीशन दिया है ना, ऑल द वावेल्स आर टुगेदर। तो रीअरेंज भी करना है और वावेल्स को भी एक साथ में रखना है, ठीक है ना। व्हाट आर द वावेल्स? वावेल्स कौन कौन से इसमें? कोऑर्डिनेशन 11 लेटर्स हैं, जिसमें कितने वावेल्स हैं? 4 है। ए ई एंड आई। तो ये 4 कहीं भी रहेंगे, एक साथ में रहेंगे। नाउ टेल मी हाउ मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू अरेंज। 11 लेटर्स थे, उसमें से ये 4 एक साथ में रहेंगे। सो हाउ मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू अरेंज नाउ? एब्सोल्युटली करेक्ट मोनालिसा, विश्व प्रकाश। ये 4 एक साथ में एक चीज, और बाकी कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? बाकी 7 कॉन्सोनेंट्स। तो 1 and 7, how many things we are going to arrange? We are going to arrange 8 things. 11 letters है, जिसमें 7 consonants है और 4 vowels है। चारों वावेल एक साथ में रहेंगे, तो ये चारों को एक साथ में एक चीज, 7 consonants 7 things, 7 plus 1 8 things. 8 things can be arranged in how many ways? 8 things can be arranged in 8 factorial different ways. अब 8 डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज, लेकिन 8 डिफरेंट थिंग्स नहीं है ना, उसमें कुछ रिपीटेशंस है। कौन कहां कहां पे रिपीटेशन है? आप देखो, कॉन्सोनेंट्स में 2 एन है और 2 टी है, उसके लिए क्या डिवाइड होगा? 2 एन के लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड होगा, 2 टी है उसके लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड होगा। एंड व्हाट एल्स? ये 4 वावेल्स तो एक साथ में रहेंगे, ये चारों में आपस में कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? टेल मी। सूरज, 4 फैक्टोरियल होता अगर 4 अलग अलग चीज होते। 4 अलग अलग चीज नहीं है ना, 2 ए है, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? गॉट इट नाउ? दिख रहा है अभी? ओके श्वेता पद्मा, ओके देवाशीष, फिर से समझा रहा हूं। अगर कोई कंडीशन नहीं होता ना, तो मैथमेटिक्स में 11 लेटर्स है, तो कोई भी नया वर्ड बनाएंगे, ये 11 लेटर्स से 11 फैक्टोरियल आंसर होता है अगर सारे 11 डिफरेंट हो। लेकिन रिपीटेशन है, 2 एन है, 2 ए है, 2 टी है। तो रीअरेंजमेंट, अगर कोई कंडीशन नहीं है, बस लेटर्स को रीअरेंज करना है, इट वुड बी 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। लेकिन कंडीशन साथ में ये दे दिया है कि सारे वावेल्स जो है एक साथ में रहेंगे। वावेल्स कितने हैं? वावेल्स 4 है, ए ई एंड आई, 2 ए है। तो ये 4 लेटर्स जो है कहीं भी रहेंगे, एक साथ में रहेंगे। तो हाउ मेनी थिंग्स आर गोइंग टू बी अरेंज्ड? 11 लेटर में ये 4 वावेल्स एक साथ में एक चीज, और बाकी 7 कॉन्सोनेंट्स, 1 and 7 8 things. 8 things can be arranged in how many ways? 8 different things can be arranged in 8 factorial different ways. लेकिन 8 different things नहीं है, चारों वावेल और बाकी 7 कॉन्सोनेंट्स का सोच रहे हैं अभी। 7 कॉन्सोनेंट्स में 2 एम है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड हुआ, 2 टी है, उसके लिए और एक 2 फैक्टोरियल डिवाइड हुआ। एंड ये चारों को तो एक साथ में रख दिया, ये चारों में कितने अरेंजमेंट्स होंगे? सब केसेस को उतने उतने केसेस बनेंगे ना।
बिल्कुल सही देवाशीष, चार अलग अलग चीज होते तो 4 फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते, तो सेम है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल या फिर 2 डिवाइड होगा. So that would be your answer. All right. Okay, then let's move on and solve some new questions. This is also something that we need to know. I think sitting arrangements में discuss किए थे. You remember? Yes, Ayushi. No, Sakshi. Arman, correct answer. Puspendra, correct answer. Yes, Sakshi. सुभस्मिता, अलौकिक, करेक्ट आंसर है. प्रतीक, वैशाली, अरुण, शुभम. शुभम आपका बस फैक्टोरियल टाइप हुआ, बाकी कितना फैक्टोरियल वो टाइप नहीं हुआ. यू गॉट इट नाउ. नो आवर्स. अभी देखो सिचुएशन क्या है और ऐसा क्यों होता है. आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन. थिंग इज, जब सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं ना, ऑल पोजीशंस एंड डायरेक्शंस किसके हिसाब से देखे जाते हैं? बाहर वाले के हिसाब से, कि वो लोग आपस में एक दूसरे के हिसाब से कैसे बैठे हैं उसके हिसाब से देखा जाता है. वो लोग आपस में एक दूसरे के हिसाब से कैसे बैठे हैं वो देखा जाता है. ठीक है. तो वही सर्कुलर टेबल का फॉर्मूला आपको पता है, n-1 फैक्टोरियल होता है. क्यों होता है वो मैं बता दे रहा हूं. ठीक है. जैसे सपोज सर्कुलर टेबल है और बैठे हैं अब टेल मी, ये दोनों सेम अरेंजमेंट्स हैं कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स? बिल्कुल सही, ये दोनों जो है ना ये सेम अरेंजमेंट्स, ये डिफरेंट नहीं है. बाहर वाले के हिसाब से ए तो यहाँ बैठा था, यहाँ नहीं बैठा है, वहां पर तो डी आके बैठ गया, ए तो कहीं दूसरी जगह पे चला गया. ये बाहर वाले के हिसाब से, जो कि मैटर नहीं करता. उनके अंदर देखो आपस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, दोनों सेम अरेंजमेंट है. आप किसी को भी पकड़ लो, जैसे आपने बी को पकड़ लिया, बी के अपोजिट में कौन बैठा है? ए बैठा है. यहाँ पर भी बी के अपोजिट में कौन बैठा है? ए ही बैठा है. बी के लेफ्ट में कौन बैठा है? डी. यहाँ पर भी बी के लेफ्ट में कौन बैठा है? डी. बी के राइट में कौन बैठा है? सी. यहाँ पर भी बी के राइट में कौन बैठा है? सी. तो कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछोगे, जो आंसर मिलेगा सेकंड सिचुएशन में भी वो सवाल पूछोगे, सेम ही आंसर मिलेगा. सो दीज आर नॉट डिफरेंट अरेंजमेंट, दीज आर द सेम अरेंजमेंट. ठीक है. या फिर आप सोचो कहीं से आप शुरू करो, लेट्स से यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड यू आर गोइंग क्लॉकवाइज. व्हाट इज द अरेंजमेंट? ACBD. Start from A, go clockwise. It is again ACBD. तो सेम ही है ना. In fact, there are 2 more cases where it will be the same arrangement. You can start from A here and you can go clockwise ACBD. ये भी सेम ही है. You can start with A here and go clockwise ACBD. It will be the same arrangement again. तो ये चार जो है, ये चार अलग अलग सिचुएशंस नहीं है, एक ही सिचुएशन. ठीक है. सो चार लोगों को अगर लीनियरली लाइन में बिठाना है, कितने वे में कर सकते हैं? लाइन में ये देखो, ये लेफ्ट मोस्ट एंड है, ये राइट मोस्ट एंड है. लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं. राइट से नंबरिंग करेंगे तो ऐसे 1 2 3 4 कर सकते हैं. ऑल आर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट पोजीशंस. तो कहीं भी ये प्लेस सपोज बनेंगे, कितने में कर सकते हैं? 4 में. ये 3, ये 2, ये 1. सो 4 into 3 into 2 into 1. 4 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं. लेकिन मैं अगर बताऊंगा सर्कुलर टेबल में, आप देखो सर्कुलर टेबल में 4 सीट्स तो है. दोज आर नॉट 4 डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट पोजीशन. सर्कल हैज, लाइन हैज अ क्लियर बिगिनिंग, क्लियर एंड. सर्कल हैज नो बिगिनिंग, नो एंड. चारों पोजीशन एक जैसे. कोई एक जन को, एक को यहां बिठा रहे हैं, यहां बिठा रहे हैं, यहां बिठा रहे हैं कि यहां बिठा रहे हैं, मैटर नहीं करता. एक को कहीं भी बिठा दिया, लेट्स से ए को यहां पे बिठा दिया, अब डिफाइन हो गया ए के हिसाब से. ए से क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये सीट्स है 1 2 3. अब ये सीट्स में कौन बैठा है वो मैटर करेगा. दीज 3 पोजीशंस कैन ओनली फिल्ड, व्हिच कैन बी फिल्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज. ओके. तो सर्कल में
पहले आइटम जिसको बिठाएंगे दैट कैन बी प्लेस्ड इन ओनली वन वे बिकॉज ऑल एन पॉइंट्स अराउंड द सर्कल आर आइडेंटिकल. ठीक है, तो पहले कोई भी चीज को एक ही वे में बिठा सकते हैं, एन सीट्स नहीं है. एक जन बैठ गया कहीं पे, फिर बाकी n-1 सीट्स उसके हिसाब से डिफाइंड हो जाते हैं. देन यू कैन फिल इन n-1 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज. सो लीनियर परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स n फैक्टोरियल, बट सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स n-1 फैक्टोरियल. गॉट इट? All right then. So these were different permutation situations. Now let me take you through another concept. Suppose I tell you an exam consists of 4 questions candidates have to answer any 3 questions. In how many different ways can a candidate pick or answer the questions? If sequence matters, if sequence doesn't matter. 4 questions है. Let's say question number 1, 2, 3, 4. और किसी भी कैंडिडेट को 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है. ठीक है, तो अगर सीक्वेंस मैटर कर रहा है तो कोई कैंडिडेट कितने डिफरेंट वे में आंसर दे सकता है. सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है तो कैंडिडेट कितने वे में आंसर दे सकता है. ओके आयुष? एंड सीक्वेंस मैटर्स 2 वेज कैसे? देखो, if sequence matters, candidate will answer how many questions? 3 questions. First question and second question and third question. पहला क्वेश्चन कितने वे में चूज कर सकते हो आप? 4 वेज में. एंड उसके बाद 3 क्वेश्चंस बचते हैं, उसमें से एक 3 वेज में सिलेक्ट कर सकते हो. एंड फिर तीसरा क्वेश्चन, बाकी जो 2 बच्चे उसमें से कोई एक. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 24. स्पर्धा, आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन. सपोज 4 क्वेश्चन से मार्क एबीसी, तो आपने जो पहला क्वेश्चन बनाया, आप 3 क्वेश्चन का आंसर दोगे, तो पहला क्वेश्चन आप कितने वे में चूज कर सकते हो? ये 4 में से कोई भी हो सकता है, ABCD 4 वेज में. फिर दूसरा क्वेश्चन आप बाकी तीनों में से कोई एक. फिर तीसरा क्वेश्चन बाकी जो 2 बचते हैं उसमें से कोई एक. So if sequence matters, it is 4 into 3 into 2, which is 24. ये समझ में आया?
सीक्वेंस मैटर्स का मतलब क्या है, फिर से समझाता हूं। सपोज किसी ने क्वेश्चन, सपोज ए सी डी, किसी का सीक्वेंस ये है, और किसी ने पहले किया डी, फिर किया ए, फिर किया सी। देखो 4 क्वेश्चंस थे ABCD, 4 क्वेश्चंस थे ABCD, ऑलराइट। किसी ने 3 क्वेश्चन बनाना था, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन बनाया, ए सी और डी। पहले बनाया ए, फिर सी, फिर डी, ऑलराइट। किसी दूसरे ने बनाया पहले डी, फिर ए, फिर सी। अगर सीक्वेंस मैटर करता है, दीज आर 2 डिफरेंट केसेस इफ sequence matters, same case if sequence doesn't matter. Understood now? Sequence matters, sequence doesn't matter का क्या है? Okay, now try to see it this way. दूसरे वे में भी सोच सकते हैं। If sequence matters, कितने केसेस हैं? 24 केसेस। If sequence doesn't matter तो क्या होगा? मान लो किसी ने आंसर दिया है कौन से 3 क्वेश्चंस, एबीसी। एबीसी में कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? 6 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो सीक्वेंस मैटर कर रहा है तो ये कितने केसेस हैं? सीक्वेंस मैटर कर रहा है तो ये कितने केसेस हैं? 6 केसेस हैं। लेकिन सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा तो ये कितने केसेस काउंट होंगे? सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा तो ये एक ही केस काउंट होगा। ठीक है, तो आप सोचो यहां पे जो 24 हो रहा है, ये 6 केस का एक केस काउंट होगा, तो 24 केसेस का कितना हो जाएगा यहाँ पे? अगर सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा तो 24/6 4 केसेस हो जाएगा ना। अगर सीक्वेंस मैटर कर रहा है तो ये 6 केसेस है, सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है, तीनों एक ही केस में काउंट होंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस मैटर करने से टोटल 24 केस हो रहा था, 6 का 1 हो रहा है तो टोटल 24 का कितना होगा? 4 होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो थिंक दिस वे कि 4 क्वेश्चंस हैं ABCD, उसमें से हमें 3 क्वेश्चंस बस चूज करने हैं, सीक्वेंस क्या होगा हम, I mean that doesn't matter। तो बेसिकली 4 में से कौन सा 3 कर सकते हैं? 4 में से 3 बनाएंगे तो एक क्वेश्चन छूटेगा बस। अगर D छूटेगा तो कौन कौन सा बनाया? ABC बनाया। अगर C छूटेगा तो ABD बनाया, और D छूटेगा तो ACD बनाया, और A को छोड़ दिया तो कौन सा 4 बनाया? और कुछ कर सकते हैं क्या? कितने केसेस होंगे? कैन यू सी? सीक्वेंस डजंट मैटर तो ये एक केस हो रहा है, सीक्वेंस मैटर करने से ये 6 केसेस हो जा रहे हैं। इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। What I basically wanted you to see here was, this is nothing but 4p3
and this is nothing but 4C3. 4P3 is 4 into 3 into 2, that is 24. 4C3 will be 4 only. Can you see it now? आयुषी सीक्वेंस अगर मैटर कर रहा है कि पहले कौन सा क्वेश्चन बनाया, फिर कौन सा बनाया, फिर कौन सा बनाया, ठीक है? तो जैसे 4 क्वेश्चंस आपको दिया गया था ABCD, जिसमें से आपको 3 बनाना था, ठीक है? अगर कौन सा 3 बनाया? ABC बनाया। कौन से सीक्वेंस में बनाया अगर वो मैटर नहीं करता है तो वो एक ही केस में काउंट होगा। कौन सा 3 क्वेश्चन बनाया? ABC। इट इज ओनली ए सिलेक्शन। अगर सीक्वेंस या अरेंजमेंट मैटर करता है तो फिर देखो ये अलग अलग केस में काउंट होगा। ABC अलग है, SCB अलग है, BAC अलग है, BC अलग है, CAB अलग है, CBA अलग है। गॉट इट नाउ? जैसे ABC का यहाँ पे 6 लिखा है अलग अलग, वैसे SCD का भी SCD, ADC, CAD, CDA, DAC, DCA 6 केसेस होंगे ना। तो सीक्वेंस मैटर होने से 24 केसेस होंगे, सीक्वेंस मैटर नहीं होने से 4 केसेस होंगे, ठीक है? एंड let me tell you what is a combination and what is the relationship between permutation and combination. Okay. Now, what is NCR? NCR means NPR का मतलब क्या था? Arrangements or permutations of R different things out of N different things. NCR का क्या मतलब है? Combination or selection of R things are different things out of N different things. परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है? परम्यूटेशन है जहां पे अरेंजमेंट या सीक्वेंस मैटर करता है, ठीक है? कॉम्बिनेशन क्या है? सीक्वेंस मैटर नहीं करता, इट इज जस्ट अ सिलेक्शन। ऑलराइट, दाल चावल खाया, चावल दाल खाया, एक ही बात है, ठीक है? तो एनसीआर और एनपीआर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या क्या रिलेशनशिप है? Anytime we are arranging R things out of N things, what we can always do? What we can always do is first we can select R things out of N things. Okay, N चीजों में से R चीजों को अरेंज करना था, डायरेक्टली कर सकते हैं। अदरवाइज पहले N चीजों से R चीजों को सिलेक्ट किया, वो कितने वे में कर सकते हैं? NCR वेज में कर सकते हैं। एंड उसके बाद वो R चीजों को हम अरेंज करेंगे। R things can be arranged in how many different ways?
R things can be arranged in how many different ways? Can be arranged in R factorial different ways. So this is always going to be the relationship between permutation and combination. NPR is NCR into R factorial. So NCR will be how much? That will be NPR divided by R factorial. Example देके समझा देता हूँ. Suppose yes ओम प्रकाश सिंपल एग्जाम्पल देके समझा देता हूं. सपोज 10 किड्स हैं, 10 बच्चे हैं, उसमें से 4 बच्चे ये 4 सीट में बैठेंगे. कितने वे में कर सकते हैं? कितने वे में कर सकते हैं? डायरेक्ट आंसर इज 10p4 है कि नहीं? बच्चे बैठेंगे. यू सी यहाँ पे राहुल बैठा है और यहाँ पे विकास बैठा है, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यहाँ पे विकास बैठा है और यहाँ पे राहुल बैठा है. अलग अलग है कि नहीं? अरेंजमेंट मैटर्स. सो 10 बच्चे हैं, उसमें से 4 बच्चों को 4 सीट्स में बिठाना है. We can always do it this way. This seat can be filled in 10 ways. Then उसके बाद this seat can be filled in 9 ways. Then this seat can be filled in 8 ways. And then this seat can be filled in 7 ways. And this is what is nothing but 10p4. Okay. अब सेम अरेंजमेंट हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं. ठीक है? कैसे? 10 बच्चों में से पहले हम क्या करेंगे? 4 बच्चे सिलेक्ट करेंगे जो कि बैठेंगे वहां पे. 10 बच्चों में से 4 बच्चे बस सिलेक्ट करेंगे, ये 4 बैठेंगे वहां पे. दैट वी कैन डू इन हाउ मेनी वेज? दैट वी कैन डू इन 10c4 वेज. ठीक है? वो कितना होगा बाद में देखेंगे. अब ये 4 बच्चों को बिठाएंगे 4 सीट्स में. नाउ टेल मी दिस. चार बच्चे सिलेक्ट कर लिए. अब यहां पे किसी एक को बिठाएंगे तो कितने में बिठा सकते हैं? अब तो 4 बच्चे ही है ना हमारे पास, यही 4 बैठेंगे. तो अभी this seat can be filled in 4 ways. This seat can be filled in 3 ways. This seat can be filled in 2. This seat can be filled in 1 ways. अब ऐसे भी कर सकते थे या फिर स्टेप बाय स्टेप ऐसे और ऐसे कर सकते हैं. ठीक है? सो 10p4 10 चीजों में से 4 अलग अलग चीजों को एक साथ में अरेंज कर दे रहे हैं. दैट शुड बी सेम एज 10c4 10 चीजों में से 4 चीजों को सिलेक्ट किया एंड वो 4 चीजों को अरेंज किया. कैन यू सी इट नाउ एवरीवन? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? थोड़ी देर पहले कहीं पे 8p5 आया था एंड somebody said 8c5 into 5 factorial. एक ही बात है. Okay? Now, please see, NPR कितना होता था? NPR होता था n factorial divided by n minus r factorial. And we know NCR will be NPR divided by r factorial. So NCR will be how much? That will be n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. एंड फिर से देख लेते हैं, जैसे एनपीआर का बताया था, सर्टेन थिंग्स शुड ऑलवेज बी एट योर फिंगर टिप्स.
टेल मी हाउ मच विल बी NC0? NC0 का वैल्यू कितना होगा? NC0 विल बी 1। 10 चीजें हैं, किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। कितने वे में कर सकते हैं? एक ही वे में कर सकते हैं, ठीक है। कोई फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है। NC0 विल बी 1। 10 चीजें किसी को नहीं लेना है, एक ही वे। What will be the value of NC1? You can use formula and decide. NC1 will be N। 10 चीजें हैं, एक को सिलेक्ट करना है। कितने वे में कर सकते हैं? 10 वे में कर सकते हैं, ठीक है। एंड कोइंसिडेंस सोचो, NP1 कितना था? NP1 कितना था? NP1 भी N ही था। अब एक ही चीज आ रहा है तो अरेंजमेंट किस चीज का? NP1 भी N है, NC1 भी N ही है। What is NC2? नो आयुषी। NP2 कितना होता था? NP2 होता था N into N-1। NC2 will be NP2 by 2 factorial. So that will be N into N-1 divided by 2. NC3 कितना होगा? NP3 कितना हो रहा था? NP3 हो रहा था N into N-1 into N-2। ये होगा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। And there is another significant thing that we need to understand. Always, what is going to happen? NCR will be equal to NC N minus R. ऐसा क्यों होगा? सपोज 10 बच्चों में से हम 3 बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनको लेट से कोई प्राइज देंगे। जब 10 बच्चों में से हम 3 बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनको प्राइज मिलेगा, साथ में वो 7 बच्चे हम लोग सिलेक्ट कर ले रहे हैं जिनको प्राइज नहीं मिलेगा। तो 10C3 जितना होगा ना, 10C7 भी उतना ही होगा एग्जैक्टली। राइट? सो टेल मी NC N-1 ये कितना होगा? जो लोग फॉर्मूला डाल के निकालने की कोशिश करेंगे उनको टाइम लगने वाला है। Sometimes you need to do it quickly. NC N-1 will be same as NC1, which is N, and NCN कितना होगा? NCN will be same as NC0, which is 1. 10 चीजें हैं, पूरे के पूरे 10 को सिलेक्ट करना है, तो कितने वे में कर सकते हैं? एक ही वे में कर सकते हैं। ओके, फॉर्मूला भी डाल के देख सकते हो। You of course, I expect all of you know 1 factorial is 1, 0 factorial is also 1. इसलिए बता रहा हूं, एक बार मुझे याद है एमकैट का टेस्ट चल रहा था। इट वाज लाइक अर्ली डेज जब एमकैट का टेस्ट नया होता था। आई थिंक दे वर कंडक्टिंग इट फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, विप्रो। तो कैसा टेस्ट पैटर्न है एंड ऑल मैं थोड़ा सा देखता रहता था तब। तो आई वॉज हैविंग अ स्क्रीन जहां पे कोई स्टूडेंट का स्क्रीन में देख पा रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं बस देख रहा था। आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड विद व्हाट द स्टूडेंट वाज डूइंग। ठीक है, क्वेश्चन उसको मिला था
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15C13 एंड ऑप्शंस भी थे, और वो सोच रहा है, पता नहीं क्या फॉर्मूला सोच रहा है, 2 मिनट इसी में लगा दिया. टेल मी व्हाट विल बी द आंसर टू 15C13. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15C13? सुभस्मिता, वो लिख देने से आई वुड हैव फेल्ट बेटर. यस यस अनुभव, I got few more correct answers also. यश, श्वेता पद्मा, आयुषी, वो करेक्ट है. ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल सही. मतलब जो फॉर्मूला वाला है वो लिखेगा फॉर्मूला एंड थोड़ा वर्कआउट करेगा. जो see if I mean you can do it better if you immediately can see it this way. कितना है? 15C2 होगा. 15C2 मतलब NC2 कितना होता है? n into n minus 1/2. तो 15 into 14/2, 14/2 7 होता है. और ये दिमाग में हो जाएगा ना, ये स्टेप्स कहीं पे लिखने की जरूरत है. So you can think that quickly. NC2 is n into n minus 1/2. 15C13 will be same as 15C2. 15 into 14/2. 15 into 7. 105. खत्म. इतना ही. तो ये क्वेश्चन अगर कोई 15-20 सेकेंड से ज्यादा टाइम लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इट शुड हैपन गेट प्रोसेस्ड इन दैट मच ऑफ टाइम, नो? ऑलराइट देन, सो लेट अस go back and solve few questions on combination. Okay. Let us answer this question. Give me the final answer not in PC. नंबर में कितना होगा आंसर बताओ. ठीक है, क्योंकि डेटा उस हिसाब से दिया है. In how many different ways? पुष्पेंद्र, I told you आंसर मुझे ऐसे नहीं चाहिए, नंबर वैल्यू निकाल के बताओ. शुभम, that is the correct answer. Very good. ओम प्रकाश, थोड़ा सा गलत हो गया और थोड़ा सा सोचना था. 4 नहीं, एटलीस्ट 4 लिखा था. और एक करेक्ट आंसर आया. नो उत्कर्ष, उत्कर्ष थोड़ा सा गलत हो गया. ज्योतिरादित्य थोड़ा सा गलत हो गया. सूरज, आयुषी अभी करेक्ट आंसर आ रहा है. श्वेता, सुभस्मिता, ये बहुत ज्यादा हो गया. Made some mistake somewhere. Okay, पीछे मैं नहीं देख पा रहा हूं. I might have got Suraj had given correct answer. Okay. अब पहले कंडीशंस को ध्यान से देख लो. क्या कंडीशंस है? हमारे पास 6 रेड और 8 ग्रीन बॉल्स हैं. सिक्स रेड और 8 ग्रीन बॉल्स हैं, जिसमें से हमें
कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं? 5 बॉल्स, और एग्जैक्टली 5 बॉल्स, जिसमें कंडीशन क्या बोला? एटलीस्ट 4 रेड बॉल्स होंगे। पहले यू फिगर आउट द सिचुएशन एंड, और में सिंपल लैंग्वेज में ब्यूटीफुली अपने आप मैथमेटिक्स में इनटू प्लस पी सी वो सब अपने आप आ जाएगा। तो 5 बॉल में से कम 4 रेड चाहिए, तो कैसे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? वी कैन सिलेक्ट 4 रेड and then how many green? If we select 4 red, 5 में से 4 अगर रेड सिलेक्ट कर ली है तो फिर एक ग्रीन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये कर सकते हैं। 4 नहीं लिखा था, एटलीस्ट 4 लिखा था। एटलीस्ट 4 का मतलब क्या है? 4 और मोर, ज्यादा भी ले सकते हैं। तो और क्या कर सकते हैं? 5 के 5 रेड ले सकते हैं। 5 रेड लेंगे तो कितने ग्रीन होंगे? 5 ही बॉल लेने थे, 5 रेड ले लिया तो 0 ग्रीन। और कुछ कर सकते हैं? 6 रेड बॉल्स हैं, 6 रेड ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते, टोटल 5 ही बॉल लेना है, तो ये कर सकते हैं। और कोई सिचुएशन सोच नहीं सकते। तो 4 रेड, कितने रेड बॉल्स हैं? 6 रेड बॉल्स हैं। आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स, 4 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? दैट कैन बी डन इन 64 वेज। एंड मतलब क्या हो जाएगा? इनटू 1 ग्रीन बॉल। कितने ग्रीन बॉल्स है? 8 ग्रीन बॉल्स है, उसमें से एक कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं? 8 से 1 वे में। और मतलब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 रेड, 6 रेड में से 5 रेड कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं? 6 से 5। 0 ग्रीन, 8 में से 0, 8 से 0। नो, अभी कैलकुलेशन करते हैं। 6 से 4 कितना हो जाएगा? 64 will be same as 62. n into n minus 1 by 2, 6 into 5 by 2, 30 by 2, that will be 15. 8c1 will be 8. 6c5 will be how much? 6c1, which will be 6. nc1 is n. And ये नहीं लिखने से भी चलता, because nc0 is 1, 6 into 1 is 6. So 15 8s are 120 plus 6, answer would be 126, which of course many of you gave. ठीक है, let us go ahead and solve some other kinds of questions. Let us answer this. In how many different ways can a committee of 5 women and 8 men be selected out of a group of 10 women and 20 men? Okay, you want to see the last question? 1 second, once again. Just a second. Somebody wants to, Sohan wants to see the last question once again. Sohan, हो गया? ठीक. Now this is the current question. How many different ways can a committee of 5 women and, yes, Sakshi, that is the correct answer, and the simple answer. Om Prakash, why did you do a plus? Or is plus and is into. Ayushi, that is the correct answer. Subhasmita, that is the correct answer. Simply question था, देखो हमें कम्युनिटी सिलेक्ट करना है 5 विमेन का। कितने विमेन है टोटल? 10 विमेन है, तो 10 विमेन है, उनमें से 5 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कितने वे में कर सकते हैं? 10 से 5 वेज में कर सकते हैं। We have to select 10 women. We have to select 5 women and 8 men. And ये भी करना है ना, and मतलब into होगा।
8 मैन, कितने मैन है? 20 मैन है। 20 में से 8 मैन कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं? इतने वे में कर सकते हैं। सो सिंपली द आंसर वुड बी दिस मच, 10c5 into 20c8. ओके, नाउ इसके वेरिएशंस आते हैं, ये देता हूं। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। इसका क्या आंसर होगा? Om, that is the correct answer. Sumer, that is the correct answer. सुभस्मिता थोड़ा सा गलत हो गया। श्वेता पद्मा, that is the correct answer. अनुभव, फैक्टोरियल क्यों होगा? हम किसी को बिठा नहीं रहे हैं कहीं पे। शिवम, that is the correct answer. भक्त गोपाल, करेक्ट आंसर। उत्कर्ष, नो, थोड़ा सा गलत हो गया। सुभस्मिता, नाउ इट इज द करेक्ट आंसर। अरमान, गलत हो गया थोड़ा। साक्षी, थोड़ा गलत हो गया। यश, सही हुआ। पुष्पेंद्र, नहीं। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। समझने के बाद बहुत ही सिंपल सिचुएशन। देखो, कोई कंडीशन नहीं होता तो वी नो सिंपल आंसर वुड बी 10c5 into 20c8। यहाँ पे कंडीशन डाल दिया कि ऐसे सिलेक्ट करना है कमिटी कि वन पर्टिकुलर वुमेन, ठीक है, लेट्स से 10 वुमेन तो है जिसमें से 5 को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन लेट्स से उनमें उनके अंदर एक उमा देवी है जिनको नहीं लेना है कमिटी में, ठीक है, तो उसको उनको तो नहीं लेना है, तो बाकी कितने वुमेन है? बाकी कितने वुमेन है? अगर एक पर्टिकुलर वुमेन को नहीं लेना है, बाकी 9 है, वो 9 में से कितनों को सिलेक्ट करेंगे? अभी वो 9 में से 5 सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर वुमेन को बिल्कुल नहीं लेना है, सी इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड और नेवर इंक्लूडेड, तो बाकी जो बचते हैं 9, उन्हीं में से ही 5 को लेना है। सो वुमेन कैन बी सिलेक्टेड इन 9c5 इज, एंड मेन का देख लो अभी, 3 particular men are always included। 3 particular men, let's say उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या, ये तीनों कैसे भी रहेंगे, ठीक है। अब कमेटी में कितने मैन लेने थे? 8 मैन लेने थे। अब ये तीनों तो रहेंगे ही रहेंगे, तो हमें और बाकी कितने मैन ढूंढने? बाकी और 5 मैन ढूंढने की, तो ये तीनों तो रहेंगे, और 5 ही मैन चाहिए हमें, ये 3 के अलावा और 5 चाहिए, तो जाके 8 मैन बनेंगे। आउट ऑफ हाउ मेनी? बिल्कुल 20 मैन में से ये 3 मैन तो पक्का चले गए, तो बाकी जो 17 बचे उसमें से और 5 चाहिए, तो बाकी 17 में से और 5 चाहिए। दिस शुड बी द आंसर टू द क्वेश्चन। गॉट इट नाउ? ऑफ कोर्स मेनी ऑफ यू गेव करेक्ट आंसर्स। All right, then let us go for another kind of a situation. In how many different ways can we select 4 cards
from a standard pack of 52 cards so as to include at least one diamond. Okay, I'm giving you options. With logic. Yes, we are only selecting. 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स सिलेक्ट करने हैं, ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि कम से कम उसमें एक डायमंड होगा. नो, नॉट अरेंजिंग. तो लॉजिक मैं बता रहा हूं और ऑप्शन लिख रहा हूं. किसी का ये लॉजिक है, हमें एक डायमंड चाहिए. डायमंड कितने हैं? डायमंड तो 13 है. तो 13 डायमंड्स में से एक ले लेते हैं, फिर बाकी तीनों कुछ भी आ जाए. बाकी कितने कार्ड्स बचते हैं? 51 में से कोई भी 3 ले लो. ठीक है. ऑप्शन बी, देयर कुड बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. ठीक है. At least one diamond means one or more diamonds. There could be exactly one diamond. तो बाकी 3, because we are selecting 4 cards. एक डायमंड हुआ तो बाकी 3 क्या होंगे? बाकी 3 नॉन डायमंड्स होंगे. डायमंड 13 है, नॉन डायमंड्स कितने हैं? how many non diamond cards? 39 है. ठीक है. So we can select 1 diamond and 3 non diamonds, or we can select 2 diamonds and 2 non diamonds, or we can select 3 diamonds and 1 non diamond, or we can select all 4 diamonds into 39C0. नहीं लिख रहा हूं because that would be 1. और एक ऑप्शन सी देख रहा हूं. ठीक है. ऑप्शन सी लॉजिक कुड बी 52 कार्ड्स हैं, 4 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 डायमंड. एटलीस्ट 1 डायमंड का नेगेटिव केस क्या होगा? एटलीस्ट 1 डायमंड का नेगेटिव केस होगा नो डायमंड. तो सारे केसेस में से जितने केसेस में नो डायमंड है अगर हटा देंगे, बाकी केसेस में कम से कम एक डायमंड होगा. सारे केसेस मतलब कितने केसेस होंगे? आउट ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड इन 52C4 ways. उसमें से कितने केसेस में बिल्कुल डायमंड्स नहीं होंगे? बिल्कुल डायमंड्स नहीं होंगे, तो चारों के चारों कार्ड नॉन डायमंड्स होंगे. चारों कार्ड्स नॉन डायमंड्स है, कितने केसेस होंगे? नॉन डायमंड्स 39 कार्ड्स है, उसमें से 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड इन 39C4 ways. ओके. एंड और एक ऑप्शन दे रहा हूं. So which one is the correct answer? Tell me now. Yes, वैशाली, ओम प्रकाश, साक्षी, सिबुन, सुभस्मिता, अभिलाषा, मोनालिसा ने करेक्ट आंसर दिया. मनोरंजन, दैट इज द करेक्ट आंसर. Yes, Jyotiraditya, that is the correct answer. Yes, Bhakt Gopal. Let me tell you what is the correct answer. ये सही नहीं है. ठीक है. क्यों? सुनने में अच्छा लगता है. एक डायमंड ले लो, बाकी 3 जो भी निकले. ठीक है. See, we are selecting 4 cards. ठीक है. 4 कार्ड्स निकालेंगे, डायमंड कितने नंबर में भी आ सकता है. हाउ कैन यू डिसाइड फर्स्ट कार्ड विल बी डायमंड? वी कैन नॉट डिसाइड. जो पहला निकालेंगे वो डायमंड होगा.
पहला नॉन डायमंड, दूसरा नॉन डायमंड, तीसरा नॉन डायमंड, चौथा डायमंड आया तो भी तो काम बन गया ना. हियर यू आर डिसाइडिंग द फर्स्ट वन इज द डायमंड. So option A was wrong, option B was correct, option C was correct. So the correct answer to the question would be option D. Okay. At least one diamond means one or more diamonds. Yes, Shweta Padma. अब देखो, एटलीस्ट वन डायमंड मीन्स वन और मोर डायमंड. तो चार में से वन डायमंड है तो 3 नॉन डायमंड्स होंगे, या फिर 2 डायमंड्स होंगे तो 2 नॉन डायमंड्स होंगे, या फिर 3 डायमंड्स होंगे तो 1 नॉन डायमंड होगा, या फिर चारों के चारों डायमंड्स होंगे. दीज आर द 4 पॉसिबल केसेस. These are the positive cases. तो कई बार क्या होता है, when there are too many positive cases, ऑप्शन बी में 4 पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं, उससे अच्छा है अगर नेगेटिव केसेस कम है, यू कैलकुलेट ऑल केसेस एंड नेगेटिव केसेस. सो द बेसिक रूल इज नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस विल बी इक्वल टू ऑल केसेस माइनस नेगेटिव केसेस. पॉजिटिव केसेस एक एक करके ऐसे काउंट कर सकते हैं ऑप्शन बी में जैसे किए, या फिर ऑल केसेस काउंट किया यहाँ पे और नेगेटिव केसेस काउंट किया यहाँ पे. 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं, 52C4 वे में. उसमें से कितने केसेस में एक भी डायमंड नहीं होगा, एक भी डायमंड नहीं होगा तो चारों के चारों कार्ड्स नॉन डायमंड्स होंगे. नॉन डायमंड्स तो 39 है, 4 नॉन डायमंड्स कैन बी सिलेक्टेड 39C4 वेज. 52C4 केसेस में से 39C4 केसेस हट जाएंगे जिसमें कोई भी डायमंड नहीं है. Yes, Shweta Padma. At least one diamond का नेगेटिव केस है नो डायमंड. नो डायमंड मीन्स ऑल 4 आर नॉन डायमंड्स. एग्जैक्टली वन डायमंड होता तो फिर सोचने की क्या बात थी. एग्जैक्टली वन डायमंड वुड बी दिस मेनी केसेस. Exactly one diamond is those many. 1 diamond and 3 non-diamonds. 13C1 into 39C3. Okay. Let us go for one more question. There are many different varieties of questions. I am trying to expose you to all different basic varieties. और भी advanced varieties हैं. This will be the last question of the day, and I'll also tell you some more concept along with this one. Yes, Ankita, that is absolutely correct. No, usually a factorial means you are arranging. No, Utkarsh, no, Devashish. Yes, Spardha, that is the correct answer. जिनको करेक्ट आंसर बोल रहा हूं, यस पुष्पेंद्र, सिद्धुन, सोहन, करेक्ट आंसर है. 7 friends. In how many different ways can you invite at least 3 of them for a party? Subhasmita, okay, you calculated 7C6 would be 7 and that would be 8. Okay.
दैट इज करेक्ट सुस्मिता. यस सुमेर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. देखो 7 फ्रेंड्स में से ये आई मीन कोई यहाँ पे कंफ्यूजन में आ रहा है परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन है. आप सोचो पार्टी में लोग आएंगे तो क्या मैटर करेगा, कौन पहले आया कौन बाद में आया मैटर करेगा क्या? नो, कौन कौन आए पार्टी में वो मैटर करेगा. एंड एज द क्वेश्चन द फ्रेजिंग सजेस्ट, he will invite at least, he is not necessarily inviting all of them, he is inviting at least 3 of his friends for a party. Let's say he is inviting 3 friends to a party. So 3 friends, he has 7 friends. Out of 7 friends, 3 friends can be selected in how many ways? So कितने वे में 3 friends को पार्टी में बुला सकते हैं? Exactly 3 friends को 7C3 ways में. बट लिखा है एटलीस्ट 3, which means ज्यादा भी बुला सकता है, 4 भी बुला सकता है. सो he can invite 3 friends, or he can invite 4 friends, or he can invite, yes मोनालिसा, that is correct. 98 नहीं होगा. Or he can invite 5, he can invite 6, he can invite all 7 also. This will be the answer. And if you calculate 7C3 कितना होगा? 7 into 6 into 5 divided by 3 factorial. 6 cancel हो जाएगा. 7 into 5 35. 7C4 is how much? 7C4 उतना ही होगा जितना 7C3 हुआ, वो भी 35 ही होगा. And 7C5 will be how much? It will be same as 7C2. 7C2 मतलब, yes, I'll explain that. 7C2, which means 7 into 6 by 2, 42 by 2, 21. 7C6 would be 7C1, 7, and 7C7 would be 1 only. ज्योतिरादित्य, वहां पे 7 फैक्टोरियल नहीं होगा. क्या होगा बता दे रहा हूं. सो यू कैन हैव हाउ मच? 70, 98 and 90, 99. ओके, वैसे ये कैलकुलेशन थोड़ा सा और आराम से कर सकते थे. कैसे? नेक्स्ट पेज में ही बता देता हूं. ओके, इधर ही बता दे. You see, there is a simple thing. Do you know NC0 plus NC1 plus NC2 plus NC3 ऐसे करके if we add up to NCN, what will be the value? That is, yes Suraj, 2 to the power n. Binomial theorems है, ठीक है. x plus y whole to the power n is binomial theorem. x y दोनों का वैल्यू 1 1 डाल देंगे ना, तो x के जितने भी पावर्स होंगे 1 हो जाएंगे, y के भी जितने पावर्स होंगे 1 हो जाएंगे. सिर्फ कोएफिशिएंट्स रह जाएंगे राइट साइड में. x भी 1 है, y भी 1 है, तो x plus y whole to the power n becomes 1 plus 1 whole to the power n, which is 2 to the power n. ठीक है. सो जैसे यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते थे, 7C0 plus 7C1 plus 7C2 plus 7C3 up to 7C7 would be 2 to the power 7, यानी 128. तो हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बस ये कैलकुलेट करके 128 से माइनस कर लेते तो हो जाता. दिस वुड बी 1, दिस इज 7, इज 21. Got it? So if you say 7 factorial minus this much, no, 7 factorial 2 to the power 7 minus इतना कर देने से बाकी मिल जाएगा. ओके, ऑलराइट ज्योतिरादित्य, क्या क्या मुश्किल शब्द यूज कर रहे हो. सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स. मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म तो मैं कभी यूज नहीं करता.
See, in a way, you can think कि पॉजिटिव केसेस और ऑन केसेस माइनस नेगेटिव केसेस, एक तरीके से अब यहाँ पे भी सोच सकते थे एटलीस्ट 3, 4, 5, 6, 7 ज्यादा पॉजिटिव केसेस हो गए, नेगेटिव केसेस 0, नेगेटिव केसेस आर 0, 1 and 2, टोटल केसेस में से इतना केसेस हटा दिया. यू कैन थिंक ऑफ दिस एज दैट वन, बट आई मीन दिस फॉर्मूला इज देयर व्हिच माइट बी यूजफुल एट टाइम्स. ठीक है, तो मेरे हिसाब से वी डिस्कस्ड मेनी बेसिक थिंग्स अराउंड काउंटिंग, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. नाउ वी नीड टू टेक इट फॉरवर्ड. एंड वैशाली, कैलकुलेटर पहले तो अलाउ नहीं होता था एमकैट में, अभी आई डोंट थिंक दे आर अलाउइंग. बाकी सब स्क्रीन आप यूज नहीं कर सकते. Calculator, they don't give questions where calculator would be needed actually. एमकैट में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जिसमें कैलकुलेटर चाहिए होगा, और कहीं पे अगर कैलकुलेशन करना है, दे वांट यू टू डू दैट कैलकुलेशन. छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, दे वांट यू टू गो अहेड विद द कैलकुलेशन. कैलकुलेटर दे देंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा ना. Basically, they are checking whether you can calculate or not. Okay, ठीक है everyone. So what I'll be doing is, तो बाकी तो ये वीक में सेशन अवेलेबिलिटी होगा सैटरडे को. So next I'll be meeting you on Tuesday, and before that what I'll be doing is I'll be sharing some material with you. So try to go through the material and solve some questions. Okay. On your own. ठीक है, मेरा मटेरियल नहीं इन द मेल, आई मीन इट विल गो फ्रॉम द करियर डेवलपमेंट से. ओके, और ये पूरा का पूरा जो है ना पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ, पीडीएफ. सो प्लीज मेक श्योर कि मैंने क्वेश्चंस ना बहुत मतलब सोच समझ के सिलेक्ट किया है. देयर आर फंडामेंटल क्वेश्चंस, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, और ये बेसिक फंडामेंटल्स है. सो जस्ट मेक श्योर कि इसमें से कुछ मिस नहीं हो रहा है आपका, सब समझ रहे हो. ठीक है, then you can solve a few more questions and you'll be much more comfortable with permutation combination questions going forward. ठीक है, तो next session में भी we'll have one practice session with permutation combination, some more concepts. उसके बाद I'll keep one session on probability. All right. अनुभव, I'll be sharing some questions with you. और ऐसे भी आजकल तो इंटरनेट में बहुत सारे अवेलेबल है. ऑफ कोर्स इंटरनेट में जंक भी बहुत सारा आ जाता है, बट आई विल सेंड यू समथिंग टुडे. ऑलराइट, इट विल बी शेयर्ड विथ यू. तो नेक्स्ट क्लास तो ट्यूसडे है, आपको टाइम भी मिलेगा आराम से प्रैक्टिस करने के लिए. ओके, यस सृष्टि, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है सिलेबस में, तो आराम से एमकैट दो. एमकैट में बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे. एमकैट टेस्ट आप मल्टीपल टाइम्स देने वाले, ये आपका फर्स्ट बेस लेवल असेसमेंट होगा. ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर एमकैट. ठीक है, एमकैट में आप एक क्वेश्चन का आंसर दोगे तभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जा पाओगे. सो डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन. डोंट गेट स्टक एनीवेयर. You'll do well. Don't worry. I mean, it is going to give you a base level assessment. इसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा कुछ नहीं. It is your base level assessment. जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे तब तक आप अपना लेवल बढ़ा सकते हो. ठीक है, नो सोहन. Devashish, I'll take one more session on permutation combination. उसके बाद probability में जाएंगे. All right. So that was all from my side for now, everyone. Thank you, and keep learning, keep enjoying. Bye bye. Thank you, Suraj. All of you have a nice time always. Bye bye. Take care.